Very good morning, students of class 10th. Again, I am Poonam Prasad here with the next topic of your geography resource and its development. And today's topic that we are dealing with the resource planning. Children, we have already gone through with the classification of resources. Then in our earlier classes, we came to know about why the development of resources are needed. And we have gone through with some repercussion or some resultant problems that have caused due to the overexploitation of resources. Fine, students. So, the exploitations have occurred. The overexploitation, overutilization of resources ultimately leads towards to the environmental degradation. Now the question arises that what should the human have to do to either to protect the resources, or some go for the strategies or the resource planning, or something that can, through which the human can utilize the resources in a proper way. So students, in our present class, we are going to start with the very important topic, and this topic is called as resource planning. Children, इस resource planning पे 5 marks का question आता है that you have to define the resource planning and what are the different stages of the resource planning. So let's we talk on the first factor. Children, जैसे कि हम लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा कि किस तरीके से रिसोर्स का बेतरतीब से इस्तेमाल करके अपने लालच को और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है कौन मनुष्य, और अल्टीमेटली इसका जो खमियाजा है वो किसको भुगतना पड़ रहा है? वी द ह्यूमन बीइंग्स टू. वी आर द प्रॉब्लम क्रिएटर एंड वी आर द प्रॉब्लम सॉल्वर. हमें पता चला कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या लेस रेनफॉल है, या ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, क्लाइमेटिक वेरिएशन है. अल्टीमेटली इसके वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आ चुका है. चैलेंज किसका है? दैट ऑन द वन हैंड वी हैव टू गो थ्रू विद द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और ऑन द अदर हैंड दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज के यूटिलाइज भी करें और हम रिसोर्सेज को वेस्ट होने से भी बचाएं. तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे, इस स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे? लेट्स बी टॉक ऑन द इश्यूज और द टॉपिक. स्टूडेंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग. हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं, उस इवेंट के लिए हम लोग प्लानिंग्स करते हैं. हम लोग प्लानिंग्स क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा पैसा, मनी, वो वेस्ट ना हो, है ना बेटा. और हम जो भी स्ट्रैटेजीज़ के साथ कोई भी टास्क या कोई भी वर्क को कंप्लीट करते हैं, दैट शुड बी डन इन अ इफेक्टिव मैनर. उसका रिजल्टेंट क्या हो? वो पॉजिटिव हो. तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद क्या है? वी हैव टू exploit the resources, we have to utilize the resources. On the other hand, we have to preserve the resources. It means development of resources are needed here. So resource planning is termed to be the technique or the strategy of a proper and judicious utilization of resources. Children, this is the definition of the resource planning. It means it is a strategy, it is a method, or it is a technique through which we can preserve or we can utilize the resources, and it also helps to reduce the wastages that are caused. It helps the environment pollution free, maintains the ecology, and we conserve the resources for our future generation. This is what the definition of resource planning meant, and this is what about the aim of the resource planning. Is that clear, students? So if we are talking about what are the different stages of the resource planning, children, इसके stages बहुत important है. अगर हम first stage की बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहला ही स्टेज आता है सर्वेइंग का. सबसे पहला मैपिंग. वी हैव टू मैप आउट द एरिया थ्रू विच वी कैन गेट व्हाट टाइप ऑफ द रिसोर्सेज है ना. उसके बाद उसकी सर्वे की जाती है. ये सर्वे और मैपिंग क्यों होती है? जस्ट टू एनालाइज और जस्ट टू असेसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दैट रिसोर्सेज.
एग्जाम्पल के तौर पे हमें कितना ज़्यादा हम डिग आउट करें कि वी कैन गेट द पीट और द लिग्नाइट और द बिटुमिनस और द एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल। इसके साथ हमें कौन कौन से कहाँ पे कोल माइंस हैं, कहाँ पे आयरन माइंस हैं, इसका भी हमें सर्वे और मैपिंग के द्वारा पता चलता है। कौन सा एरिया किस पोटेंशियल ऑफ द रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेह एंड लद्दाख इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, और उस कोल्ड डेजर्ट के साथ साथ अगर हम ये कहें कि वो मिनरल रिच नहीं है या अदर फैक्टर्स के लिए वो उसके क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या अदर फैक्टर्स हैं जिससे कि उसका इकोनॉमी, लेकिन उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है, तो हमने लेह और लद्दाख को किसके लिए इस्तेमाल कर दिया, हमने लेह लद्दाख का इस्तेमाल कर दिया फॉर द टूरिज़्म पर्पस। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया को भी हमने एज अ टूरिज़्म के तौर पे और फॉरेस्ट रिच स्टेट्स के तौर पे हमने उसका यूटिलाइजेशन किया रिसोर्स के तौर पे, है ना बेटा। तो ये हमें पता कैसे चला, बाय एनालाइजिंग बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मेजर्स टू नो अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। सेकेंड, अगर हम लोग बात करते हैं दैट व्हाट अबाउट इट वॉज द असेसमेंट ऑफ द डिमांड इन द मार्केट। इट ऑल्सो लीड्स टूवर्ड्स टू इम्पोर्ट टू द इकोनॉमी। इट मीन्स दैट whatsoever the importance, जो इसका importance है उसके towards the economy and availability of the technology for developing that resource. Children, यहाँ पे importance है, importance to economy, basically economy के लिए इसलिए क्योंकि for example अगर हमने coal का इस्तेमाल किया है तो coal can be utilized as both it fulfill the demands of the you can say it fulfills the demand of the domestic as well as international market। तो डिमांड्स के आधार पे हमने टेक्नोलॉजी के द्वारा उस रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है। एग्जांपल के तौर पे हमें कोलार माइंस जो है इट इज़ वन ऑफ द गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया, है ना, और गोलकुंडा के माइंस जो हैं वो इट इज़ यूजफुल फॉर द डायमंड्स ऑल्सो। तो उसके लिए जो कोल माइंस है, कोलार माइंस है, दैट इज़ इन द कर्नाटका, वो गोल्ड माइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी खुदाई की जाती है जस्ट टू फुलफिल द डिमांड्स इन द मार्केट फॉर द गोल्ड। इसके साथ साथ जो थर्ड स्टेज है, द थर्ड स्टेज इज़ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट गिव्स द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमने रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया और जिसके वजह से कंट्री की इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें एसेस करना पड़ेगा। तो इट कम्स टू द थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज involves the identification and inventory of the resources. Second stage involves the assessment of the resources as per the demand of the resources in the market. And third is called as just we have to exploit the resources for the national economy, for the growth of the national economy, है ना बेटा। जैसे कि हम लोग आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन ओर को जब हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस मिनरल का इस्तेमाल हमारे डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पर्पस के लिए भी किया जाता है। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, खासकर हमारे जैसे बिवरेजेस हैं, हमारे टी, इसका इस्तेमाल हम लोग इंडियन मार्केट को फुलफ़िल करने के साथ साथ फॉरेन मार्केट को भी फुलफ़िल करते हैं ना। तो इस तरीके से ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, और जो ये 3 मार्क्स है ये आपके स्टेजेस पे है। तो दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। अगर आप पूरे जोग्राफी फिजिकल फीचर ऑफ द इंडिया के बारे में जानते हैं, इन द क्लास 9 वी यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट। हम लोगों ने देखा किस तरह से छोटा नागपुर जो मिनरल बेल्ट है, जैसे कि आपका झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, दीज आर रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। दैट इज़ द सेम थिंग विद द दक्कन प्लेटू, लाइक मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दीज आर व्हाट, दीज आर रिच इन द मिनरल्स। तभी हम लोग इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो
तो राजस्थान has a potential of the solar energy as well as it is having a potential of your tourism. Attractive state of India कहा जाता है इसको, colorful state of India कहा जाता है. This, the history of Rajasthan itself shows the energies of the valor, और यही कारण है कि लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसके कलरफुल स्टेट को देखने के लिए. फॉरेनर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज गेन करते हैं, तभी राजस्थान इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ द टूरिज़्म, राइट. इसके अलावा आपकी जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ है, जिसमें यू कैन द पेरिनियल रिवर्स के साथ, वो स्टेट्स आर रिच इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए है. बेटा इसके साथ साथ आपके हिमालयन रिवर्स हैं, इट गिव्स द हाइडल एनर्जी. गुजरात, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ द विंड एनर्जी. And if you are talking about the Jharkhand or Chhattisgarh, they are rich in minerals, as I've already told you. इसके अलावा आपके बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कोस्टल रीजन्स हैं. ये सब एक कंट्री का डिपेंड करता है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक. इट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट और अ कंट्री, उसका जोग्राफिकल एरिया, उसका कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दीज ऑल आर बिहाइंड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कि अगर हमने कहा नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ योर फॉरेस्ट. इट इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट, यू कैन से, जैसे सिक्किम है, सिक्किम इज कंसिडर्ड एज अ टूरिज्म पोटेंशियल. तो बेटा वी नीड वॉट, वी नीड अ केयरफुल प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जस्ट टू नो अबाउट विच part of a country is rich in what type of resources. So resource planning is needed. Why? To keep our environment pollution free. We keep the resources for future generation, and also we have checked the resources, we have checked the wastages, and we have utilized the resources evenly. टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट. टेक्नोलॉजी इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें कि वो वेस्टेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि शुगर केन जो रॉ मटेरियल है, वी जनरेटेड फ्रॉम द एज अ एग्रीकल्चर क्रॉप, हमने उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? शुगर ऑब्टेन करने के लिए, है ना. उसका वेस्टेज क्या है? मोलासिस. उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं फॉर द लीकर पर्पस, यानी कि शराब के लिए. उस शुगर केन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग बैगेजेस बोलते हैं, उससे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बेटा, उससे पेपर बनाया जाता है और उससे कार्डबोर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, प्लाई बोर्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं. किचन वेस्ट है या अर्बन वेस्ट है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग बायोमास एनर्जी के लिए करते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मेन्योर के लिए किया जाता है. तो इट मीन्स दैट वी नीड व्हाट, वी नीड अ केयरफुल प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज. सो this is the, you can say, duty of the government, and this is the responsibility of the citizen, that we have to take care of our resources, children. Thus we can say, if we want to initiate the development of an area or to some resources which are present here, what we need, we have to go for the careful planning. ठीक है बेटा, हमें अगर हम केयरफुल प्लानिंग करेंगे रिसोर्सेज का, तो इससे हम लोग वी कैन जनरेट द इकोनॉमी एंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बेटा. Thus, by this, we have completed the important aspect, that is the development of the resources. Children, in our next class, we are going towards to have the conservation of resources. That is why and how do we need to have
to conserve the resources along with the Agenda 21 and Rio de Janeiro Earth Summit, right? Till then, you have to revise the topic, you have to watch the video, and take care. God bless you all.